in the group with you anyway. So we discussed that. मैं कह रही थी I'll do prepositions today just for your vocabulary part Okay. and one avoir mal. Um, okay. Yeah. Donc il y a quelques prépositions ici. ये तो आपको नोट डाउन ही करना है. आप अभी साथ साथ you can write, we can do the meanings quickly. You can write if you wish to. Yeah, right. Yeah, so ले contraire form में है ये. तो आप you'll be able to learn it quickly. And these are independent prepositions, है ना, इनके opposites नहीं होते. तो okay, ले contraire, ठीक है, opposites of the prepositions. These are all the prepositions. So pour क्या होता है, आप बताओ. For, FOR, ठीक है. Contre will be for the motion, against the motion against होता the है ना. motion. For का opposite against. Contre. Devant, in front of. So, Derrière, front. behind. Behind. Sur, on. सू तो आप पढ़े हो अभी क्वेश्चन में ही, इमेज वाले में. सू लेज इमेज पढ़ा था ना. ऑन का ऑपोजिट क्या होता है? Off. Off. अंडर. यार ऑन Under. का ऑफ कहाँ से हो जाए? ऑफ का तो ऑन होता है, OFF का. ऑन ऑफ वो वाला ऑन ऑफ. Sous. अच्छा, sous वो chef. स्विच ऑन ऑफ Sous बोल chef. दिया आपने. हाँ. Yeah. It's like sous chef, under the main head chef. हाँ, अंडर, राइट. सू लेजी माश था ना, अंडर द बिलो, अंडर द इमेज. वैसे तो बिलो ना चाहिए था, बट एनीवे. आफ्टर, Before. बिफोर, Before. avant. वही, après, avant. ओके. près de, near. loin de, Near. Far away. Far. हाँ, far. They. au-dessus de is above. तो on और above में थोड़ा फर्क होता है ना. on is like Yeah. जो कि ऑन द टेबल है, मतलब कुछ रखा हुआ है, टेबल से चिपका हुआ है, राइट. अबव द टेबल होता है, जैसे द फैन इज अबव द टेबल, ऊपर सीलिंग पे है ना. Yeah. ओ दिस यू. सो स्पेलिंग का ही थोड़ा सा बस वो है. They. SSUS है ना, ये स्यूर से आप इसे थोड़ा रिलेट कर सकते हो. मतलब मैंने ऐसे ही याद किया था जब मेरे को बड़ी कंफ्यूजन होती थी, तो मैंने सोचा कि SUR है और यहाँ पे भी SUS है, तो ये ऑन वाला अबव हो गया. और यहाँ पे सूस है ना, यहाँ पे भी सूस है, तो ये बिलो हो गया. Okay. But ये तो sewer ओ द with an स्यू R. द. फिर आपने लिंक कैसे करा उसको? मतलब ऐसे ही अंडर को बिलो हो गया ना, नीचे अच्छा, है तो. okay, the meaning. हाँ, मतलब वो स्पेलिंग में कंफ्यूजन होता है, दोनों में से क्या है, ऑन बिल अबव बिलो. Okay, got it. Son. सॉ इज विदाउट. और अवेक, अवेक तो पता है आपको, With. विद. सुयुवांत आगोश, का क्या मतलब होता था? Consider. फॉलोइंग. Following. आगोश इज Gosh. टू द लेफ्ट. मतलब टू द लेफ्ट ही लिख देते हैं, आ लिखा है तो टू द लेफ्ट. और आधुआत, To the right. हम्म.
हम्म शे याद है हमने किया था. करेक्ट. At one's place. Chez At moi, one's chez le place. docteur, chez ma mère. Je suis chez ma mère. I am at my mother's house. हम्म. ये सब भी है. हाँ, इनके opposites नहीं है. These are independent prepositions. You can write them. So Okay. a is She. to या at. ये हमने किया था, याद है ना? Yeah, cities created. हाँ, the is of या फिर from. The puis means since. Vers means towards. Pendant means during. ओ बूद, ये वाले prepositions यूज भी करना है हमको राइटिंग में. ओ बूद at the end of. And during. Au coin de, at the corner of. Au bout de. Autour de, around. No. En face de is the synonym of devant. En face de, मुंह के सामने, मतलब in front of. ठीक है, तो आप कुछ भी बोल सकते हो. devant, like my there is a garden in front of my house. Il y a un jardin devant ma maison. And I can also say il y a un jardin en face de ma maison. ठीक है. De. À côté de, at the side of. Au centre de, at the center of. En face. Au bord de, at the In front of. नहीं, au bord de मतलब at the edge of. À côté de. At the side of. Au milieu de, in the middle of. Or centre de. Okay. Where en dehors de. Where en dehors de is what? Towards outside. This is how we At the say. center. Or border. Or border at the edge. Or milieu. The. Or milieu. Hmm. In the middle of. Where are they or the. Where's on they or they the. Where en dehors de. Towards outside. देखो यहाँ पे हमने लिखा है ना, वेयर का मतलब लिखा है ना, कहाँ पे था ये रहा, टुवर्ड्स. हम्म. और दहौर, दहौर मतलब आउटसाइड Means होता है. लिखा है outside. दहौर कहीं पे? मैंने नहीं लिखा. अच्छा, एक और ऐड भी कर सकते हो, ये कॉन्ट्रेयर में आप लोग ऐड कर लो. दो, उसका ऑपोजिट हो जाएगा दौर. इन एंड आउट, बेसिकली ये आउटसाइड होता है. और ये इन, Don't. हाँ, ये इनसाइड कह लो या इन 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 कह लो इसको. ठीक है, ये ऑपोजिट में डाल देते हैं इसको. इन आउट, They or. कॉन्ट्रेयर. वैसे ना द दो द दौर होना चाहिए. वैसे द दो होता है इनसाइड, मतलब इनसाइड मतलब जब आप एक्सटेंसिवली इनसाइड बोल रहे हो ना, इनसाइड का दौर होना चाहिए. दो को आप सेपरेट लिख लो, इन.
ऐसे लिख लो। इन द मेट्रो, dans le métro, इन द ट्रेन, dans इनसाइड द मेट्रो नहीं बोलते ना। इनसाइड मतलब जस्ट लुक इनसाइड द बैग, या तब भी दो ही बोलते हैं, बट ठीक है, यू मस्ट नो द कॉन्टेक्स्ट। So are they opposite words? द दो और द और, या फिर दो, मतलब आप दोनों लिख सकते हो, द दो और स्लैश डाल के दो कर लो, यहाँ पे द दो भी लिख लो। द दो इज लाइक मोर ऑफ इंटेंसिव, मतलब अंदर, मतलब इनसाइड, है ना, डिफरेंस होता है ना इनसाइड और इन में, पता है ना थोड़ा सा, Yeah, right. वैसा ही बस। So dada is inside. हाँ, Okay, and एंड दो do is इज in. इन, और ये ऑपोजिट है, द और आउटसाइड, ये दोनों का ही ऑपोजिट है, ठीक है, सेम, द और, बट दो और द दो आपको कॉन्टेक्चुअली यूज करना है, जो जनरली दो ही यूज होता है। Yeah. हम्म, ठीक है, यू रिटन। Yes. ओके, ठीक है, एक ये रीड कर लेते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये समझ में के लिए, मतलब here we have the usage of these prepositions, so like la compréhension, so yeah, three lines, first three lines, yeah, read करो, so you read. Aujourd'hui, हाँ, nous aujourd'hui, allons, हम्म nous allons à हम्म l'école हम्म de manuel. the manual, The Sorry, the manuel. हम्म Uh, nous हम्म prenons nous prenons, la, हाँ, nous prenons la première la première rue, la première rue à gauche, AU is on, gauche. à Oh, gauche, sorry, à gauche. Puis puis, nous a puis puis, puis, pli puis, pli. हाँ, Nous puis, allons हम्म, dans tout droit, tout droit. Oui, ok, tout droit et nous tournant, tournons to turn, à tourner verb हो गया, TOURNER, हम्म, ok à droite à droite, droite हम्म et हम्म voilà voilà, oui voilà sorry हम्म nous sommes हम्म euh, devant हम्म l'école yeah, devant l'école, devant l'école ओके, या c'est कंटिन्यू, ok yeah. हाँ, चलो तला आप पढ़ो यहाँ Ok. तक। C'est une grande école, grande école, grande école. हम्म Elle a un rez, हम्म rez de हम्म choses. रे द chaussée is ground Okay, floor, ground floor. One ठीक है, second, let me just हम्म raise रे द chaussée, ground floor. So again, elle a un rez-de-chaussée et हम्म deux étages. deux étages, Deux étages. deux étages, Deux étages. हाँ, Le terrain des हम्म sports हम्म est, est हम्म derrière l'école. हम्म La salle de classe des manuels दे नहीं est पढ़ना है, ऐसे द uh, द द, sorry, yes. हम्म La salle de classe de manuel, हम्म manuel
et au deuxième Doxni, étage. deuxième. Deuxième हम्म étage. ओके ओके जतिन बाजी Yeah. Dola, हम्म glass. हम्म Il y a हम्म des हम्म tables, हम्म des chaises, शेज chaises, शेज chaises, हाँ chaises for the elves, pour les élèves sorry, for les élèves, les élèves हाँ yeah, les हम्म élèves, un हम्म bureau, bureau o e a u is o bureau, bureau chez, une chaise sorry, une chaise हम्म for the हम्म professor. हम्म 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 It is a, ए a, a table, tableau tableau, okay, हाँ AUO, tableau, noir, noir noir, हम्म okay. Il, il y a, हम्म il y a aussi हम्म uh, une carte de la France हम्म contre हम्म le mur, mur mur, Mhm. mur, म्यूर mur. हाँ ओके सो ये पे यहाँ पे इट्स जस्ट पहले तो आपने नोट किया होगा इट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ स्कूल वो थोड़ा Mhm. स्कूल के बारे में भी बता रहा है इट इज अ बिग स्कूल ठीक है अच्छा अब मैं Equal. एक क्वेश्चन दे देती हूँ इसके ऊपर डिस्क्रीवे वोथ्र एकोल तो आप लोग कॉलेज में हो ना Mhm. तो आप लिख डिस्क्रीवे वोथ्र कॉलेज जो कॉलेज में है Mhm. और जो कॉलेज या स्कूल दोनों ही आपको ये डिस्क्राइब करना है या तो स्कूल कॉलेज व्हाटएवर आप सबको करना है अब आप अपना स्कूल टाइम का स्कूल डिस्क्राइब कर सकते हो सो हुसएवर Mhm. ठीक है कॉलेज आक्सों खराब आता है सो you can take the picture screenshot of this so that you can refer to this and write so décrivez votre école so limit नहीं है words का कम से कम 10-15 lines 10 lines जितनी भी लिखनी है so aujourd'hui nous allons à l'école de Manuel है ना so we are going to the school of Manuel nous prenons ला प्रीमियर rue à gauche so वो डायरेक्शन बता रहा है जब आप किसी को रास्ता बता रहे हो फॉर एग्जाम्पल आप कोई खो गया रास्ते में या किसी को कुछ जगह ढूंढनी है ठीक Mhm. है ये डायलॉग आता है वैसे डेल्फ A1 A2 में ऐसा आ जाता है एग्जाम में तो आपको कैसे रास्ता किसी को गाइड करना है ठीक है फॉर एग्जाम्पल quelqu'un nous dit bonjour I want to go to the school je voudrais aller à l'école can you please help me puis pouvez-vous m'aider तो आप बोलोगे या bien sûr you first go straight then take a right on the left there will be a school ऐसे बताएंगे ना तो फर्स्ट गो स्ट्रेट तो ऐसे करके आपको ना वोकैबलरी डालनी है ये जो तू ध्रुआ होता है इसका मतलब स्ट्रेट होता है आप लिख सकते हो ये डायरेक्शंस हैं तू ध्रुआ दो वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रेट आगोश आध्रुआ तो आपको पता है टू द लेफ्ट टू द राइट ठीक है तो वो कह Mhm. रहा है फर्स्ट वी टेक द फर्स्ट रोड नो प्रणो वी टेक द फर्स्ट रोड ऑन द राइट या एट द राइट देन वी टेक sorry on the left and then we go straight and we turn to the right and Right. voila the school is here we are in front of the school it's a big school c'est une grande école elle a un rez-de-chaussée यहाँ से डिस्क्रिप्शन शुरू हुआ है ना Mhm. इट हैज यहाँ पे एल जो है ना वो इट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इट है अच्छा आपको ये बताया है मैंने क्या कि इल और एल जो अभी तक हमने किया था ही और Mhm. शी He किया and था she. राइट Mhm. ये Yeah. इट भी होता है
दोनों का मतलब इट भी होता है, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ पे हमने बोला सेट यून ग्रांड एकोल, इट इज अ बिग École. स्कूल। हाँ, तो एकोल क्योंकि फेमिनिन सिंगुलर है, Hmm. तो हमने एकोल को अब बार बार तो नहीं बोलेंगे सेट एकोल आरे द से सेट एकोल आत्रे द स्पोर सेट एकोल एकोल Correct. एकोल, है ना। तो हमें इट यूज करना पड़ेगा। तो इंस्टेड ऑफ एकोल वी से एल आ और एदशो, यहाँ पे शी हैज नहीं है, इसका Hmm. मतलब Hmm. इट It has a मीन्स ground इट floor. हैज। तो हमने शी, तो इसका मतलब अब होता है ही शी और इट, ठीक है। Hmm. Hmm. तो इट हैज, Understood. सो फेमिनिन सिंगुलर, अ ग्राउंड फ्लोर एंड 2 floors। Le terrain de sport मतलब the sports ground Sports ground, yeah. is behind the And school, derrière was behind, behind. ठीक है। La salle de classe क्या होता है? Where is साल मतलब derrière? रूम, Okay, wow. La Classroom. salle the classroom, very good, है ना। The classroom of Manuel is on the एक मिनट, Ground. la salle de classe da Manuel the Same. second हाँ Like floor, second floor right, second second floor. floor floor, yes, एताज। Yeah. तो आप ना, those हाँ आज मैं एक हाउस डिस्क्रिप्शन भी करते हैं, और आप देक्रीवे वॉटर एकोल और देक्रीवे वॉटर मेजोन 2 चीजें करोगे, मैं अभी लिखवा ही देती हूँ। घर पे घर जब आप डिस्क्राइब करेंगे तो आप झूठ मूठ में अगर फ्लोर है तो डाल देना, नहीं है तो झूठ मूठ में डाल देना, ठीक है। जस्ट टू एक्चुअली हैव अ वोकैबुलरी, ठीक है। so 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 on the décrivez first floor votre there is école there is a my brother's room, और on the top there is a terrace, ऐसे से करके। so Dans la décrivez classe, votre école and décrivez votre मेजों अभी maison. मैं पढ़ाऊंगी, हाँ फिर उसको करते हैं। फिर मैं लिख देती हूँ वो क्वेश्चन। In the class, dans la classe, il y a des tables, des chaises pour les élèves, un bureau, une chaise pour le professeur et un tableau noir। ये सारी क्लासरूम वोकैबुलरी हो गई। There are in the class there are some tables, some chairs for the students। ब्यूरो, ब्यूरो ना ऑफिस भी होता है, Hmm. और ब्यूरो डेस्क भी होता है, ठीक है। Oh, हम्म, BUREA. और डेस्क, une chaise pour le professeur, a chair for the teacher, then and a tableau noir, a blackboard। ओल्ड स्कूल है ये blackboard। ठीक है। Il y इलिया a aussi. ओसीज also, there is also the map of France, carte de la France is map of France। contre le Santa mur, Santa. against the wall। हम Against हमेशा the ऐसे wall. बोलते हैं, मतलब जैसे देयर इज अ सीनरी ऑन द वॉल नहीं बोलते, अगर कोई, तो फिर हम उसको अगेंस्ट द वॉल बोलते हैं, contre le mur। ठीक है, सो दिस वाज जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्कूल यूजिंग prepositions एक्चुअली। तो ना मैं हाउस का निकाल देती हूँ, आप उसको क्लिक कर लो, खुद से Hmm. ही रीड करके Hmm. उसको समझना भी है और करना है तो। और मैं आज एक टॉपिक करते हैं, जस्ट एक मुझे ये अबवार माल कराना है अभी। Where is- a minute। हम्म, I think हाँ ये रहा ये। so you can take the picture Right. of this,
This is actually using adjective possessive. ठीक है, मॉम में एक्सेट्रा. सो यू कैन फाइंड आउट द मीनिंग. और आप अगर चाहें तो थोड़े और वोकैबुलरी देख सकते हैं, वोकैबुलरी रिलेटेड टू हाउस. ठीक है, जैसे Ma maison कारपेट. est belle et très ये खुद पढ़ना है confortable. बाद में, अभी नहीं. अभी आप, दिस विल बी योर होमवर्क. ठीक है ना. आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दिस वन एक्सप्रेशन, दिस यू शुड नो. Okay. avoir mal. avoir mal. उसके बाद ना ये prepositions लगाते हैं आ वाले. आ या फिर ओ, जो भी होता है बताते हैं वो कैसे. ठीक है, आला या जो भी, जो हमने कॉन्ट्रैक्टे किए थे. सो avoir mal मतलब टू हैव अ पेन. avoir मीन्स टू हैव, और mal मतलब टू हैव अ पेन. ठीक है, या फिर या पेन ही बोलेंगे. ठीक है. Thought mal means money. नॉट दैट माल, टू हैव माल, हाँ वो भी. सो ठीक है, सो टू हैव पेन. ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू गो टू द डॉक्टर, तो फिर डॉक्टर पूछता है क्या हुआ, मतलब कहाँ दर्द है. Hmm. तो le docteur demande chez le médecin, है ना. at the Hmm. doctor's, médecin मतलब डॉक्टर. At the pharmacy at the clinic, clinic है ना. clinic. तो डॉक्टर कह रहा है ओ अच्छी माल, वो ऐसे पेट दर्द लेके आया. Oh, सो you have वेयर pain? do Where do you you have have pain? pain? So avoir अच्छी माल, where do you have pain? तो उसके जवाब में, so there are different types of sentences you guys can use if you want to talk about any pain. तो ये पढ़ो. J'ai mal aux dents. j'ai mal aux dents मतलब I have pain दांत in my में. Pain teeth. in teeth. राइट. टीथ, दो. सो तो दो प्लोरल है, DENTS लिखते हैं, Hmm. तो AUX हो जाएगा. अब हमें ऐसे बोलना ना, Yes. मेरे दांत में दर्द है, आई हैव पेन इन माई टीथ ऐसे. या फिर आई हैव, जिसे मैं बोलूंगी आई हैव पेन इन माई हेड बोलते हैं, या फिर आई हैव पेन इन द हेड. मतलब आई जब मैं बोल रही हूँ तो I have a ऑब्वियसली मेरे headache. ही पेन, हाँ. मेरे ही सर में दर्द है. Hmm. तो आपको ना यहाँ पे दोबारा से MES नहीं लगाना, ये मैं बताना चाह रही हूँ. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे नहीं बोलना ये माल आ में दो, में नहीं लगाना. वो हमें अंडरस्टूड है, आप ही के दांतों में दर्द हो रहा है, तो Hmm. AUX ही लगेगा. मतलब आर्टिकल कॉन्ट्रैक्टे लगाना है. ठीक है, ये रूल होता है एक्चुअली फ्रेंच में. अगर बोलना है ही हैज ये माल आला तैत, मैं जैसे बोल रही थी अभी ये माल आला तैत, मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो आला तैत, बिकॉज तैत इज फेमिनिन. ओके. और मुझे बोलना ला उस, लगा है की जगह. ओके. मेरे को बोलना उसके सर में दर्द हो रहा है, ही हैज पेन, तो मैं बोलूंगी इल आ माल आला तैत. आला तक. ठीक है. इल आ माल ओ दो, इल आ माल al estómago, जहाँ पे जहाँ जहाँ दर्द हो रहा है बता देना. ठीक है. एस्टोमाक मतलब स्टमक. ठीक है. Oh, yes. ये माल ओ पिए, पिए मतलब पैर, पैर में दर्द हो रहा है. सो पिए मैस्कुलिन सिंगुलर है. ठीक है. ये माल ओ वॉन्त्र, वॉन्त्र पेट होता है, तो सो ये दिस इज मैस्कुलिन. ठीक है. कल भेजा था शायद मैंने वो Yes. बॉडी हाँ. पार्ट्स है ना. सो वॉन्त्र का सिनोनिम इज एस्टोमाक, स्टमक. Hmm. वॉन्त्र इज आल्सो स्टमक. मैं वॉन्त्र, हाँ दोनों, एस्टोमाक एंड वॉन्त्र बोथ आर मैस्कुलिन. So देन hum, ही. हम्म. so whenever is mentioned Jamal, we can always do like Ilamal. यस,
इल Okay. आमाल, एल आमाल, नू जावो माल, हम सबके सर में दर्द हो रहा है. नू जावो माल अला tet. ठीक है. ये माल अला गौर, मेरे गले में दर्द हो रहा है. ये माल ओ दो, मेरे बैक में पेन हो रहा है, बैक पेन. दो इज बैक. ठीक है. तो बॉडी पार्ट्स के हिसाब से जहां जहां दर्द हो रहा है उस हिसाब से आपको ए यू वाला एक्सेट्रा लगाना है. एंड सब्जेक्ट जिसके भी सर में दर्द हो रहा है उस हिसाब से यू हैव टू यूज द वर्ब avoir. ठीक है. Yes. Yes, ma'am. So this is an expression avoir mal, Hmm. ala, whatever, o, ala, To have etc. pain. Yes. ठीक है. Hmm. So this is तो यहाँ पे शायद एक एक्सरसाइज भी है, ये आप खींच लो, इसको कर लेना. ये समझ अच्छा. के करना है. अच्छा है. एक ये भी क्लिक कर लो और एक और भी क्लिक कर लो. एक चीज और खोलती हूँ. हो गया. Hmm. Yeah, yeah. अच्छा, दिस ऑल्सो, क्लिक दिस ऑल्सो. सो दीज आर एक्चुअली एक्सप्रेसियों. हमने किया था एक्सप्रेसियों ऑफ एक फेयर एंड जुए, याद है? Jouer, फेयर. yes. Yeah. To So do we and to have play. few Mm. expressions with avoir also, which means to have. और अगर आपको एक एक्सप्रेशन तो हमने किया हुआ है, एज के साथ हम हाँ. हैव यूज करते हैं, याद है ना ये? तो ना Yeah. ऐसे Hmm. there are certain expressions in French wherein we use the verb avoir. जैसे फॉर एग्जाम्पल avoir fa. आप अपनी नोटबुक में जब लिखेंगे, अगर इसको नोट करेंगे ना, तो ऐसे लिखना avoir fa. मतलब सबके पीछे avoir avoir लगाना. अच्छा. avoir soif, avoir हुआ. जैसे avoir माल लिखा था ना, ऐसे avoir शो ऐसे लिखना. तो उससे आगे समझ चल में के आएगा कि याद रहे. हाँ, इससे समझ में आएगा ना. avoir कॉन्जुगेट करना है सब्जेक्ट के साथ और फिर. सो avoir fa मतलब टू बी हंग्री. बट टू बी तो वो होता है ना, एत्र होता है ना, आई एम हंग्री. हम्म. ठीक है. तो बट वो आई हैव हंग्री लिखना है, मतलब समझ रहे हो? जे फा मतलब मुझे भूख लग रही है, तो हम्म. मैं je suis fan ही बोलूंगी. मतलब जे फा, जे ये वाला जे फा. J. हाँ. तो ये ऐसे ना, देर आर सम. और ये वाले तो B1 में यूज होंगे, ये वाले. मतलब ये B1 टाइप के है. avoir on to the, avoir पर the. ठीक है. तो इनको सो क्या ये करना आप है, ना कन्वर्ट क्लिक करना कर है? लो, इसको आपको खुद से ही पढ़ना है. हाँ. ठीक है. थोड़ा सा टाइम ले दे के पढ़ना, मतलब समझ के, तो चीजें Okay. समझ में आएंगी. ठीक है. अब क्योंकि ये सब वोकेबलरी वगैरह ना, आपको थोड़ा थोड़ा खुद से पढ़ते रहना है. मैं तो चीजें शेयर कर रही हूँ. ठीक है. Yes, ma'am. donc ça c'est expression avec avoir. Correct. जैसे यहाँ पे कुछ एक्सप्रेसियों avec faire भी हैं, ये भी क्लिक कर लो. कुछ तो आपने किया हुआ है, कुछ कुछ आपको खुद से पता चल जाएगा. सेम चीज ही है वैसे, कुछ खास नहीं है. ये सब किया हुआ है. ठीक Faire, है. faire, ये della किया हुआ है. robic. फेयर यूनिरॉन्डोने, फेयर ड्यूस्की, Dusky. है ना? बट ये सब आप, बट ये Hello. ना नोट डाउन कर लेना प्लीज. तो सही रहे, तो इट विल बी बेटर. बिकॉज फेयर, आई टोल्ड यू, इट्स अ वेरी Confusing. Vast use. Vast use. हाँ, वर्सेटाइल Very commonly used सॉर्ट and ऑफ. very हाँ, confusing sometimes. कंफ्यूजिंग या. तो ये तो बहुत कम है, मतलब वी हैव लाइक 200-300 कम से कम एक्सप्रेशंस अजीब अजीब से. ठीक है. पर ठीक है, इतने हमें यूज करने में आएंगे नहीं. ये सब आएंगे जो लिखे हैं, और थोड़े बहुत आगे. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट वोकेबलरी में जितना prepositions हो गए, एडजेक्टिव्स हो गए. ठीक है, कि ये कर लेते हैं. नहीं, एक सेकंड, बुक्स के साथ चलते हैं. और लिसनिंग फिर अब हम ये वाला कल करेंगे, मंडे करेंगे, मतलब Okay. 67 and 68 we will do definitely. ये तो हमने पहले ही कर लिया ना, डिस्क्राइब योर फैमिली मेंबर्स एंड ऑल दैट.
ठीक है, तो आप फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी कभी आगे कभी लिखने का मौका मिला या बोलने का, तो फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, ठीक है। ओके। हाँ, नाइन्थ इज लेज इमोशनल कैरेक्टर, ये तो समझ में आ रहा है टॉपिक से ही, है ना। क्या Emotions है? हैप्पी, and स्ट्रेस, characters. एंग्री। तो ये इंटरनल मतलब वो फीलिंग्स वाली डिस्क्रिप्शन हो गई। Hmm. तो ये है वोकैबुलरी, दिस यू गाइस कैन रीड। ये रहा वो जिसवी फातीगे, कौन पूछ रहा था टायर्ड वाला। मैं तो ये just feel very इमोशंस, fatigued. हाँ हाँ, तो ये वो चैप्टर है इमोशंस पे बेस्ड, ठीक है। फातीगे, सैड, हैप्पी, तो इन सब के थोड़े मीनिंग्स ढूंढ ढूंढ के लिखिए, ऐसे ही यस। पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एडजेक्टिव्स हैं, बट एडजेक्टिव्स ऑफ लाइक व्हेन यू आर डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर और द इमोशंस, ठीक है। सीरियस, enjoyable, Hmm. timid मतलब शाय, पैरस लेजी, नर्वस, व्यवहार मतलब क्या कहते हैं जो बक बक करते, मतलब क्या बोलते हैं उससे, जो बहुत बोलता है। बैबल बैबल बकवास करता करता है है। ऐसा। बकवास, हाँ मतलब जो जो बोलते रहते हैं ना, मतलब Hmm. बकवास करने में मजा आता है, लाइक टॉकेटिव टॉकेटिव, है ना। टॉकेटिव, हाँ, टॉकेटिव। बाबा। So fear to be proud of, like I'm proud. Egoist is टॉकेटिव। not egoistic. Egoist is selfish. Hmm. ये egoistic के टर्म्स में नहीं आएगा, उसका मतलब एटीट्यूड होता है, थोद एटीट्यूड, मतलब मेरे में बड़ा एटीट्यूड है, तो मैं बोलूंगी, या मतलब मैं बड़ी इगोइस्ट हूँ, इगोइस्टिक हूँ। वैसे तो मैं नहीं हूँ, बट स्टिल थ्रोद सेल्फ एटीट्यूड, सेंटर्ड। उसको एटीट्यूड से मतलब हम रिलेट करते हैं फ्रेंच में। लेकिन जो एगोइस्ट मतलब होता है वो सेल्फिश होता है, ठीक है। Okay. एगोइस्ट इज सेल्फिश इन फ्रेंच, ठीक है। तो ये सब तो आप खुद ही पढ़िएगा और वोकैबुलरी डेवलप करो, इन सबको याद भी करना है, ठीक है। ये क्वेश्चंस कर लेना, ये वाले मैं आप पे छोड़ रही हूँ, कर सकते हो, नॉट अ बिग डील। और तो पेज कुछ नंबर 39। 37, 38, 39, और ये भी पढ़ के देखिएगा ये वाला 40 पे। तो वीकेंड में आपको पूरा 2-2 घंटे दो, डेली 2-4 घंटे अब करना है। ये भी पढ़िए आप, से और इल ए, ये नहीं समझ में आएगा तो पूछना, ठीक है। इजी है चिलेंट। वैसे। Right. नो ग्रामर। बस इसके बाद ये मैं कराऊंगी ला फ्राज इंटरोगेटिव। तो हम नेक्स्ट टॉपिक हम ये करेंगे टुडे, adverb भी आगे आ जाएंगे और फिर लिसनिंग भी है, ठीक है। सो बेसिकली यू हैव टू डू टिल पेज नंबर 40। सो page numero 37, 38, 39 एंड 40 में कैरॉन। फर्स्ट वाला पार्ट Hmm. ग्रामर का, Say ठीक है। and ille. हाँ हाँ, दिस इज और इट इज, बस यही है। तो इट इज दिस इज में कुछ अंतर नहीं है, बहुत थोड़ा सा Hmm. पता चल जाएगा। वही जो भी इट वाला बताया था ना रूल, वैसा है। Hmm. या ही Hmm. इज होगा इस कॉन्टेक्स्ट में मेरे ख्याल से, पता नहीं, पढ़ के देखना, ठीक है। वो ही Okay. इज है बेसिकली, दिस इज और ही इज है, तो इतना Hmm. कुछ या खास समझ में, ब्यूटीफुल। ठीक है। ये हम करना है, लिसनिंग करनी है। ये तो अभी हम इस बुक में से लिसनिंग कर रहे हैं, मेरी एक बार ये थोड़ा A2 लेवल तक थोड़ा खत्म हो जाए, मैं थोड़ा दूसरी बुक से, तब 10 दिन तो लगातार लिसनिंग ही करना है मुझे, तो इसलिए वोकैबुलरी डेवलप कर लो, फिर जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक यस वी मैम। कैन स्टॉप हियर। सो Hmm. मंडे Hmm. से मैं ना डिस्कशन भी करेंगे, और एक एक टॉपिक एवरी क्लास वी हैव टू डू, ठीक है। Yes. एंड लिसनिंग ऑल्सो, और ये And सब भी हमने किया हुआ है। मैं धीरे धीरे जल्दी जल्दी, अब मैंने आपको बताया था शुरू में स्पीड स्लो होगी, अब ऐसे मैं अब जल्दी जल्दी जाती जाएगी। तो आप खुद ही, अगर आपको लग रहा है 41 पेज भी करना है, 42 भी करना है, ये आप कर नहीं, अभी टाइम हमने नहीं किया, तो आप आगे का खुद भी थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, ठीक है। शुरू शुरू। हाँ, नहीं. ठीक है। एनी क्वेश्चंस? तो मेरे को यहाँ से शुरू करना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। I noticed that अगर 2 घंटे दें straight, हम्म तो ये सारी हम्म एक्सरसाइज हो जाती है। मैं यही करता था हाँ, तो क्लास करना ही पड़ेगा क्लास अब। जिस दिन हम लोग क्लास करते थे काम के बाद, 2 घंटे दिए रात को 9 से 10:30, और हम्म
बिकॉज अगले दिन फिर नहीं हो पाता है. हाँ, Then you बिकॉज start एक्चुअली अभी forgetting. तो सिर्फ एक ही बुक आप कर लो वही बहुत है, मतलब है ना. इतनी सारी बुक्स को अलग अलग खोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी. तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि वन बुक यू शुड बी थरो. ठीक है, फिर दूसरी बुक में से तो जैसे जो अलग से शेयर की है उसमें से तो मैं फिर एक दो चीजें आपको बता दूंगी, ये वाली जरूर कर लो, ये कर लो, ये कर लो, तो मोटा मोटी मतलब फिर हो जाएगा. और दिमाग खराब होने लगता है शिवानी, पता नहीं समझ नहीं आता ये है मतलब 1.5 कितनी घंटा चीजें याद ठीक करनी है. है. 1.5 घंटा तो ठीक है, इससे ज्यादा मैं खुद भी नहीं कह रही. 1.5 आवर तो देना पड़ेगा, अब क्या कर पाए, क्या कर सकते हैं. लाला, इलिया फती, यो इलिया लाला फती, फातिगे. फती है. सो ठीक है, फॉर वीकेंड. अच्छा, वो देक्रीवे वॉत्र मेजों, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, सॉरी. एक तो आई हैव गिवन यू योर स्कूल. School and And house. and a house. हाँ, I तो wrote it down उसमें for myself. देक्रीवे वॉत्र मेजों. हाँ. ठीक है. मेजों फेमिनिन होता है, यून मेजों. ठीक है, हाँ. वो आप पढ़ेंगे तो फिर आपके पास राइटिंग भी है और ग्रामर भी, पूरा ये प्रैक्टिस भी है. ठीक है, फॉर दीज 2 हम्म. days. हम्म. सो राइटिंग जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना लिखिए. जितने एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हो उतने यूज करिए. कलर्स यूज करो. जिसका मेरे मेरे रूम की दीवारें वाइट है, सो यू कैन से माय रूम हैज वाइट वॉल्स और ब्लू वॉल्स. आई देयर इज अ ह्यूज बेड इन माय बेडरूम. ठीक है. सो आई लव देर आर 5 ब्लैक कबर्ड्स इन माई रूम. ऐसे करके मतलब कलर्स भी डालो. जो जो हमने किया है, यूज ऑल द एलिमेंट्स. ठीक है. Okay. ट्राई नौ करेंगे. पास से सेंटेंसेस बनाओ. आई डू नॉट लाइक डॉग, हाँ हेंस ये आई, या फिर मेरे है. पास कुछ, मैं आई डू नॉट हैव डॉग, तो आई je n'aime pas les chiens से. तो ऐसे करके कुछ भी. ठीक है, चलिए. ओके देन. ओके, au revoir Bonne then, nuit. bon weekend. Yeah, Bonne nuit. merci. Ok, bonne journée à toi. Ok, au revoir then. See you on Monday. Over. Yeah. Bye bye.